हेलो गाइस। जैसा हमने इस प्रोस्पीस के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, द थर्ड लेवल टाइम ट्रैवल के बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम पर बेस्ड है। बिसाइड्स द फ्लाइट ऑफ द ब्रेन, मीनिंग हमारा ब्रेन कहाँ तक सोच सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। Before we move on guys, there's something exciting and extremely helpful in store for you. Listen, in my previous videos I have been telling you कि हर poem and prose piece के कुछ keywords and phrases होते हैं जो हमारे subjective answers में ज़रूर होने चाहिए। यही तो वो keywords and phrases हैं जो एक 100% scorer के answer script में मिलते हैं। So as we move on in this video, whenever we come across a keyword or phrase, this is what you're gonna see on your screen. So this won't just help you revise, but also ring a bell for you that you must use them in your examination. So let's get ready to score 100% marks. By the way, अगर अब तक आपने मेरा वीडियो How to score 100% marks in class 12 English board examination नहीं देखा है guys, तो जाओ देखो उसे। 100% marks लाना है ना? It's a highly recommended video and you will find the link in the description box. So guys, in the first part of this video we covered the theme, about the protagonist, setting of the story, justification of title, basic plot, intersection of time and space, how Charlie strayed into the third level, significance of labyrinth, inference of Sam's letter, plot resolution. Prose piece is open-ended, or we can even say it's a half-baked story, and figures of speech. Check out these details guys, you will find the link of the first part in the description box. So chaliye, let's understand the text through the explanation. And don't forget to subscribe to my channel, Learn English, Refine Your Personality. The prose piece third level is a first person narration, meaning हमें story सुनाई जा रही है जो first hand experience है। आपको I मिलेगा, my मिलेगा, you know, this means that the protagonist is also the narrator. Charlie is the narrator of the story. So this story basically is a blend of fiction and reality. टाइम ट्रैवल पर बेस्ड एंटरटेनिंग स्टोरी है। टाइम ट्रैवल केवल इमेजिनेशन में ही होता है, मीनिंग हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आ जा सकते हैं थ्रू आवर ब्रेन। तभी ये एक्सप्रेशन यूज हुआ है, द फ्लाइट ऑफ द ब्रेन, मीनिंग हमारा ब्रेन कहाँ तक सोच सकता है। सो प्रोज पीस द थर्ड लेवल का प्लॉट इसी पर बेस्ड है। फिर हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट चार्ली, जो एक 31-year-old सिटी dweller है and who talks about Grand Central Station of New York having 3 levels whereas there were just 2 levels. Not only does he believe कि third level पे Grand Central पे 3 levels हैं, वो ये भी सोचने लगता है कि वो actually exist करता है. So we can say that not only does he believe in the existence of this hypothetical third level but also claims he has been there. So Grand Central Station को आप metro station की तरह समझिए and levels को floors की तरह. So while everybody said इस station में 2 floors हैं, Charlie would say नहीं, 2 नहीं हैं, यहाँ पे 3 levels हैं, 3 floors हैं. So guys, Charlie insists यहाँ 3 levels हैं because उसका कहना है वो वहाँ जाकर आया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, चार्ली वापस वहाँ परमानेंटली अपनी वाइफ लुइजा के साथ जाने के लिए भी थर्ड लेवल को ढूंढने लगता है। थर्ड लेवल से आप ये भी समझ सकते हो एक ऐसी दुनिया जहाँ सब परफेक्ट हो। ऐसी दुनिया के लिए हम क्या टर्म्स यूज़ करेंगे एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन या थर्ड लेवल क्या सिंबलाइज करते हैं, वो मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो डू चेक इट आउट। सो एक ऐसा पर्सन जो इमेजिनेशन में रहता है एंड मोरोवर उन जगहों को ढूंढता भी है, उसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। बस यहीं हम एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं एज अ रीडर, सैम जो एक साइकियाट्रिस्ट भी है एंड चार्ली का फ्रेंड भी।
सैम का ये मानना था दैट जिस थर्ड लेवल की बात चार्ली करता है वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मीनिंग मॉडर्न मैन की ये विश है कि मॉडर्न लाइफ में जो भी फियर, इनसिक्योरिटीज, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशंस हैं उनसे वो एस्केप कर जाए. Charlie wants to be at peace, hence has an escapist tendency. He tends to look for a world where there is tranquility and yearns for a utopian. An ideal world. Utopia क्या होता है? An ideal world एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ perfect होता है. So इसी utopia को author is referring to as the third level. So third level can also refer to a point of reality. और ये point of reality हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सच में exist नहीं करता but brain में, mind में exist करता है. Only through this flight of imagination a person can travel virtually to escape harsh realities of life. So psychiatrist friends Sam and Charlie के सब friends यही opinion रखते थे that Charlie का stamp collection उसको कुछ time के लिए सारी insecurities, fear etc. भुला देता था. Meaning his hobby of stamp collection, जिससे philately भी बोलते हैं, was a temporary refuge from reality. बट प्रोटैगनिस्ट चार्ली ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था बिकॉज ये स्टैम्प कलेक्शन उसे उनके ग्रैंडफादर से मिला था एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज ग्रैंडफादर थिंग्स वर नॉट सो डिफिकल्ट. देयर वाज नो इनसिक्योरिटी एंड फियर और एंजाइटी इन द 19th century. आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे कि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हो तो उनके टाइम में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था जितना आपके टाइम में है. इसलिए प्रेजेंट टाइम्स में हम इनसिक्योर हैं और pressurized हैं और बहुत anxious हैं. Anyway, that particular night, Charlie was too tired and बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था. Remember, वो दिन he was not even looking for the third level, but उसी दिन उसने third level discover किया, meaning Galesburg, Illinois of 1894. The place was very close to Charlie's heart because वो बहुत peaceful जगह थी and Charlie had been at Galesburg, Illinois as a young boy where he attended school. Anyway, Charlie gets lost here. Screen पर देखें kind of flow chart जिसे आपको समझने में easy होगा where he started from and how he finally discovered the third level. Where he started from, look at that, you can see it on your screen. It's kind of a flow chart. Please see and how eventually he came out of a tunnel. And जब वो tunnel से बाहर आया उसने क्या realize किया कि वो third level पहुंच चुका है, मतलब 1894 में पहुंच चुका है, time travel कर चुका है. यहाँ आप देखोगे there is a description of the way of dressing of Charlie and others around him. इसका significance है that he has time travel, meaning हर इरा, हर टाइम पीरियड का अपना अलग फैशन, अलग ड्रेसिंग अप स्टाइल होता है ना. दैट्स हाउ जब प्रेजेंट ड्रेसिंग स्टाइल का डिस्क्रिप्शन करते करते ऑथर पास्ट का डिस्क्रिप्शन करने लगता है, वी एज अ रीडर अंडरस्टैंड दैट वो लेट 19th century में पहुंच गया है. In other words, protagonist Charlie accidentally discovers a train that runs between New York and the year 1894. So it was not the first time that Charlie got lost. पहले भी hundreds of times he had been at Grand Central, but उसको हमेशा ऐसा लगता था that Grand Central was like a tree because जैसे trees के root system, shoot system grow करते रहते हैं, branches grow करती रहती हैं, तो he felt that Grand Central also kept growing new doorways and stairs and corridors. So Grand Central को tree से compare किया गया है. So Charlie continues walking. He's looking for a train to reach home. And then he reaches a long tunnel. जिसके दूसरे end पर निकल के he found himself on the third level. Present day Grand Central Station से Charlie had reached the third level, meaning अभी भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही है, बट 1894 में जहाँ there were smaller rooms, fewer ticket windows and open flame gas lights.
यहाँ manner of dressing described है of the people of the third level. You can see an image here about the fashion, the way of dressing of 1894. Then to confirm he had time travel, Charlie spotted a newspaper, The World, जिस पर डेट थी June 1894 and lead story was about President Cleveland, जिनकी डेथ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं 1908 में हुई थी. अगर एग्ज़ाम में आपसे वन रेफरेंस पूछा जाए 1894 का तो आप ये लिख सकते हैं रेफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, जिस पर डेट June 11, 1894 की थी. अब देखते हैं चार्ली को थर्ड लेवल से भागना क्यों पड़ा. बिकॉज ही विश टू रिटर्न टू द पीसफुल लाइफ विद हिज वाइफ टू गेल्सबर्ग, इलिनॉय. चार्ली टिकट विंडो पर जाकर 2 टिकट्स खरीदता है, बट जो करेंसी वो क्लर्क को ऑफर करता है वो ओल्ड स्टाइल नहीं थी. सो द क्लर्क थॉट ही वाज ट्राइंग टू चीट हिम एंड थ्रेटन्स हिम. आप समझ रहे हो ना, चार्ली 20th सेंचुरी की करेंसी 19th सेंचुरी में यूज कर रहा था. इट वाज जेन्युइन मनी, लेकिन ऑफ कोर्स 19th सेंचुरी में तो वो बनी नहीं थी, वो चलती नहीं थी. सो क्लर्क ने सोचा कि वो उसको कॉन करने की, चीट करने की कोशिश कर रहा है. सो चार्ली वापस टाइम ट्रैवल करके अपने टाइम में आता है. एंड अब देखो अभी भी वो उसी हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में है. $300 के बदले 200 ओल्ड स्टाइल के डॉलर्स बाय करता है, जिसमें उसे लॉस है. बट वो अपने आप को क्या बोलता है, कोई बात नहीं, पास्ट में चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, दे वर चीपर. और ये सब बिकॉज नाउ ही इज़ डेफिनेट द थर्ड लेवल एग्जिस्ट, एंड पूरी प्लानिंग के साथ वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ सेटल होना चाहता था. सो ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल इवन व्हेन हिज वाइफ टेल्स हिम नॉट टू. एनीवे ही नेवर फाइंड्स इट अगेन. चार्ली को कभी भी दोबारा वो जगह मिलती ही नहीं है. सो फाइनली ही गिव्स अप और अब वो अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो जाता है. देन जैसे स्टोरी एंड होने लगती है, हम देखते हैं चार्ली एंड लुइजा दोनों थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं, बिकॉज अब उनके पास प्रूफ है दैट ऐसी जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. हुआ क्या था, सैम गायब हो जाता है, सैम डिसअपियर्स, एंड अब सैम थर्ड लेवल में है, मीनिंग पास्ट में. चार्ली रिमेंबर्स, वो हमेशा सैम से शेयर करता था अपने एक्सपीरियंसेस एज अ स्कूल बॉय इन गेल्सबर्ग, एंड ग्रेजुअली सैम भी उसकी थर्ड लेवल की बातों में बिलीव करने लगा. एंड उस जगह को ढूंढकर ही एक्चुअली एस्केप्ड टू इट. अब यहाँ पे फर्स्ट डे कवर्स का मेंशन है. जब कोई न्यू स्टैम्प इशू होता था तो फिलेटली, दैट इज स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी वाले लोग, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप पर न्यूली इशूड स्टैम्प लगाकर एनवेलप के अंदर एक ब्लैंक शीट रख देते थे एंड पोस्ट कर देते थे. सो एक्चुअली वो उन्होंने खुद ही अपने को पोस्ट किया होता था, तो उनको पता होता था कि अंदर जो लेटर है वो ब्लैंक है, तो वो कभी भी एनवेलप को ओपन नहीं करते थे, बस वो उनके कलेक्शन में स्टे करता था. क्लाइमेक्स में द रीडर गेट्स टू नो दैट चार्ली को अपने कलेक्शन में ऐसा एक फर्स्ट डे कवर मिला जो पहले वहाँ था ही नहीं, एंड जिस पर उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस था. सो एनवेलप में एक्चुअली चार्ली फाउंड सैम का लेटर, और ये लेटर सैम ने चार्ली को लिखा था. लेटर वॉज डेटेड July 18, 1894, जिसे प्रूव हो गया था थर्ड लेवल एग्जिस्टेड. यहाँ हम देखते हैं दैट साइकियाट्रिस्ट सैम जो काउंसिल करता था चार्ली को कि नहीं ऐसी कोई जगह नहीं है, वो भी इक्वली इनसिक्योर था, और वो दिल में ये चाहता था कि काश ये चार्ली जो बोलता रहता है कि ऐसा एक यूटोपियन एग्जिस्ट करता है वो सच हो. एंड वो धीरे धीरे चार्ली की बातें सुनते सुनते ही ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, जबकि ये सिर्फ चार्ली के माइंड का क्रिएशन था. देन चार्ली गेट्स टू नो दैट सैम ने $800 एक्सचेंज किए थे ओल्ड स्टाइल करेंसी के लिए डिसअपियर होने से पहले, जिससे उसने 1894 में हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट किया. ऑब्वियसली वहाँ साइकियाट्री तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना वो, फॉर 2 सिंपल रीजंस. एक तो दोज वर वेरी पीसफुल डेज, तो वहाँ पे किसी को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी. एंड सेकेंडली द साइंस ऑफ साइकियाट्री वॉज एट इट्स इन्फेंसी.
वो टाइम था जब साइकियाट्री शुरू हुई थी, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था. सो गाइज, इट्स एन ओपन एंडेड स्टोरी, जिसे हाफ बेक्ड स्टोरी भी बोल सकते हैं, wherein the reader wonders कि सैम ने सच में लेटर लिखा था या ये भी चार्ली का एस्केप करने का तरीका था अपने को कन्विंस करने के लिए that third level exists. So I hope you have understood the prose piece well along with all the keywords and phrases. It's a long video guys, but बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप जब जाते हो तो कोई भी डिटेल ओवरलुक नहीं किया जा सकता. Hence, I always try to include every major and minor detail in my videos. Do comment and let me know if you find my videos helpful, and don't forget to subscribe please. Take care. God bless.